ਉਹ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਘੱਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਹੀ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਭਾਬੀ ਦਾ ਹੀ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾ ਕੇ 15 ਮਿੰਟ ਹਵਾਲੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲੀ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਬਸ਼ਰਮ ਚੂੜੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਫੋਟੋ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਵਾਲੇ ਲੈਣ ਡਿਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਦੁਰ ਲਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੌਲਵੀ ਨਈਮ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਨਈਮ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪੌਲੇ ਮਾਰੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਿਆ। ਏਡੇ ਬਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਹਦੀਸ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ हजरत मिर्जा मसरूर अहमद साहब की रिकॉर्डिंग चलाती है, तू आके अपनी रिकॉर्डिंग चला, बोलन ही नहीं डे कोलों दोवें बंदे। नहीं रिकॉर्डिंग चलाए, उस रिकॉर्डिंग च कुछ नहीं, वो ते जेड़े इन्ने लफाज बोले ना उस रिकॉर्डिंग च भी नहीं है। जेड़े ये आंदा पिया मौला अली दा कौल है, ओदे कपड़े ला देगा, फलान कर देगा, ढमकान कर देगा कि ए नाम निहाद मुसलमान ए थल्ले शुएब राजा वर्गे जेड़े नाम निहाद मुसलमान बने फिरदे ने, जेड़े कहंदे ने कि असी इस्लाम दे मुहाफिज हां। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਹੋ। ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਦਫਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮੋ ਬਰਬਰੀਅਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਸਤੀ, ਸਾਡੇ ਇਮਾਮ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ, ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਕਹਿਣ ਡਏ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਨ, ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਹੈ। ਐਸ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਬਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾਉਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨਾ, ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਬਣਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹਵਸ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਗੰਦਗੀ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਬਾਰ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਗਲਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਸਵਾ ਜ਼ਲੀਲੋ ਰੁਸਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲੋ ਰੁਸਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਬਣਾਤਾ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੰਗਾ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੰਗਾ ਕਰੇ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਵਾਧੂ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦਾ ਨਾਉਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੀ ਇੰਜ ਦੰਦ ਕੱਢੇਗਾ, ਇੰਜ ਹੀ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਦਫਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਹੋਏਗਾ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਗੱਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਬਰੇਲਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਗੱਦਾਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੀਰ ਨੇ ਤੇ ਸੁਹੇਬ ਰਾਜਾ ਨੇ ਹੱਸਣਾ, ਅਮਰ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਤਾ, ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨਨਤ ਅਦਾ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਮਣ ਤੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਬਰੇਲਵੀ, ਇੱਕ ਬਰੇਲਵੀ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਵਾਬੀ ਬੈਠਾ। ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰੇਲਵੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਬੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਬੀਆਂ ਨੇ ਖਿਲਾਫਤ ਉਸਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਈਲ ਬਣਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਪੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਛੁਰਾ ਘੁੰਮ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 에ਅਰ ਬੇਸਿਸ ਕਿਹਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ? ਵਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਘੁੰਮ ਪਿਆ। ਖਿਲਾਫਤ ਉਸਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਬੀ ਸਨ ਸ਼ਾਮਲ, ਪੈਰੋ ਪੈਰ। ਵਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸੁੰਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨੀ, ਉਸ ਅਰਬ ਦੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਤਵੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਲੋਂਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਅਮੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਹੈ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੀਰ, ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਗੱਦਾਰ ਹੈ ਔਰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਨਾਉਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਸੁਨਨਤ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਗੱਦਾਰ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ? ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਲੱਗੇ ਕੱਚਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਟਰੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਟਰੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਹਿਬ, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? ठीक है सारे बंदे? खैरियत खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसे हैं? जी बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है।
अभी आपने एक फिल्म चली है, वो देखी है? कौन सी फिल्म, क्या नाम है उसका? वो फिल्म है अहले तशी और नासबी भाई भाई, उस फिल्म का नाम है। अहले तशी तो नासबी मेरे ख्याल में अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के नहीं खिलाफ नहीं होते नहीं हैं। नहीं, वो भाई भाई हैं। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा। इधर कुछ अहले तशी भाई आए हमारे पास, उनके पास वो जो एक कंट्रोवर्शियल ऑडियो है गुस्ताखी की हजरत अल्लामा आमिर नजीर साहब की, वो हमने उनको सुनाई। तो अच्छा। वो बड़े जज्बाती हुए, उन्होंने जनाब कफ अपने ऊपर किए, डोले शोले सीधे किए, उन्होंने कहा भाई गर्दन भी उतर जाएगी, ये भी हो जाएगा, ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। बल्कि ज़िया रसूल जो डॉक्टर डेरिंग की नाम की आईडी बैठी, इसके पास इसकी तो ऑडियोज पहले भी हैं, ये अहले बैत पे भौंकता है, ये है वो है। इधर से गए वो उधर उनकी ब्रॉड पे, आमिर नजीर साहब की। आमिर नजीर साहब ने कहा कि आपको ये आप पहले तो डालें मिर्जा साहब पे लानत। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ, ਯਾਰ ਆਈ ਜੀ ਨਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਮਿਊਟ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰਾ ਵੀਰੋ, 3-4 ਆਈਡੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾ ਯਾਰ। ਅੱਗੇ 3 ਵਾਰ ਤੂੰ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ, ਖੋਲ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੀ। पूरी लाइव वास्ते ना करो यार, बस 1-1 मिनट वास्ते करया करो, जो मैसेज पसंद नहीं होता। ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ 1-1 ਮਿੰਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 1-1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਆਈਡੀਆਂ ਬਲਾਕ ਕਰੀ ਜਾਓ। अच्छा, ट्रू मुस्लिम साहब उधर गए हैं, उधर जाके उनको कहा गया है कि आप क्योंकि एक तो मरज़इयों की ब्रॉड पे थे, इसलिए उन्होंने आपको गलत रिकॉर्डिंग सुनाई है। उनको वापसी पे सही रिकॉर्डिंग भी नहीं सुनाई गई। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको गलत रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ तो उसका मकसद ये है, मैं आपको कहता हूँ कि आपने गलत रिकॉर्डिंग सुनी है, असल रिकॉर्डिंग ये है। हाँ, तो असल मेरा रिकॉर्डिंग काम है कि मैं आपसे मुतालबा करूं कि मुझे असल रिकॉर्डिंग सुनाओ, फिर उनका भी बिल्कुल। काम है असल रिकॉर्डिंग सुनाना। बिल्कुल, क्योंकि फिर उनको सारा इस बात पे फोकस कर दिया गया, क्योंकि तुम अहमदियों की ब्रॉड पे हर किसी का मौकफ होता है। तो होगी, और वो वापस आ गए इधर आके। उनमें से एक बंदा कहता है मुझे तो पता ही नहीं था कि आप लोग अहमदी हो या मरज़ई हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी कि हमारा अकीदा जो भी हो, जो हजरत अली अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी हुई है, वो क्या इस बात से खत्म हो जाती है कि खबर देने वाला अहमदी था? अच्छा, मैं ये सुन रहा था, वो एक लड़का गया था निक्का पीर की नाम की आईडी से। पहले तो उन्होंने कहा था उसको कि आप अहमदियों के ब्रॉड से आए हो, तो आप अहमदी तो नहीं, उनको शक हुआ ये अहमदी है। तो फिर उन्होंने कहा आप मिर्ज़ा साहब को क्या मानते हैं। फिर उन्होंने उस निक्का पीर से मिर्ज़ा साहब के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें उससे ज़बरदस्ती कहलवाई। फिर कहते हैं ठीक है अब हमें यकीन हो गया तो मैं अहमदी नहीं हूँ। अच्छा, तो उसको वो कुछ कह रहा था और उसको वो ना कायल कर रहे थे कि हमने ऐसे नहीं किया, उसको वो हदीस भी सुना रहे थे। फिर वो मिर्ज़ा मसरूर साहब की एक ऑडियो थी, उसी हदीस से मतलब वो एक रवायत बयान कर रहे थे कहीं, वो भी उसको सुना रहे थे। तो बहरहाल जो भी है, ये जो भी मुसलमान हैं जो कलमा पढ़ते हैं नबी पाक का, वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो कभी भी नहीं सुन सकते कि ये हज़रत अली की सुन्नत है। और जो ये कहे और फिर इस पर डट जाए और अड़ा रहे, तो ये मेरे ख्याल में इंतहाई शदीद तरीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी शान में गुस्ताखी है। तो मेरे ख्याल में जो है ना, आमिर नज़ीर साहब को क्या करना चाहिए, उनको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए और अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए कि भाई मैंने गलती से कह दिए, ना कि आप उनको डट जाना चाहिए, उनकी इसकी तावीलें करनी चाहिए, अपनी मर्ज़ी की तशरीह करनी चाहिए। तो उनके लिए बेहतरीन रास्ता ये है कि माफ़ी मांग लें, अपने अल्फाज वापस ले लें, कहें भाई मैं गुस्से में आ गया था, कह दिए, बस गलती हो गई, माफ़ तो कर देते हैं ना उसमें। और ट्रू मुस्लिम भाई, उसमें जो अहले तशी भाई हैं, जो अपने आप को हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का सबसे बड़ा उनकी मोहब्बत के वो क्लेमेंट है, बिल्कुल, उनको भी इस बात से सोचना चाहिए कि हजरत अली की शान में अगर कोई गुस्ताखी हुई है और उसकी खबर आपको बकौल आपके किसी गैर मुस्लिम ने दी है, तो एटलीस्ट उस पर स्टैंड तो करो। उसे ये तो कहो भाई तुमने फिर भी गलत किया, मुझे जिसने भी खबर दी है, मुझे जिस मर्जी ने खबर दी है, तुमने बात गलत की है। लेकिन आप देखें, इखलाकी गिरावट का ये मेयार है और हिपोक्रेसी मुनाफकत का ये मेयार है हमारी कौम में कि क्योंकि हमने एक तबके को दबाना है, ठीक है, जिसको हम आला तरीन मानते हैं उसकी भी खैर है, लेकिन उस तबके के खिलाफ हमने बकवास फिर भी जारी रखा। इरफान जाट साहब माइक म्यूट करो।
अच्छा देखिए, अगर कोई गैर मुलद शख्स है वो हमें आके बताता है कि फ़लाँ शख्स ने नबी पाक की शान में गुस्ताखी की है, तो जो भी कलमा को मुसलमान होगा उसको तकलीफ होगी, उसको चाहिए कि वो उसकी बात को लेके जाए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, ना कि वो ये कहे यार ये बताने वाला तो मुलद है, इसका मतलब वो सच्चा मुसलमान नहीं है। बताने वाला जो भी हो, गुस्ताखी साबित हो रही है और जो जिसने की है वो भी कह रहा है उसने की है। इसमें तो कोई देखें इतराज़ नहीं होना चीज़ें दो चाहिए। हैं, इसमें खबर चीज़ें देने दो वाला हैं। कौन है? इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि सुन्नत उसको गिना जाता है जो उन्होंने काम किया हो, सुन्नत कहते ही उसी को है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किया है, और उसको दूसरा करता तो कहता है ये नबी की सुन्नत है। हज़रत अली ने अगर ये काम किया तो ये फिर सुन्नत बता रहे हैं। ये तो डिफाइन हो गया ना, बिल्कुल पक्की बात हो गई। रही बात ये अपने अब्बा यजीद को बचाने के लिए ये इस किस्म के काम कर रहे हैं कि हमारे अब्बी यजीद पे कोई बात ना है, जिसको यजीद अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं। हमारी तरफ हमें क्या तकलीफ है? हमें तो तकलीफ हज़रत अली की तकलीफ हुई है ना, हम तो हज़रत अली के लिए खड़े हैं। लेकिन वो अपने अब्बा जान यजीद अलैहिस्सलाम को बचाने के लिए अब खड़े हो गए हैं। असल बात तो ये है। देखिए जो हदीस है बुखारी शरीफ की 3081, उसमें तो ये अमल तो हुआ नहीं है कपड़े उतारने वाला, उसमें तो सिर्फ धमकी दी गई है, और ये धमकी भी जो है हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से नहीं दी गई। बताया गया है कि उसमें जो लिखा और हुआ है वो दूसरी बात ये है हजरत अली का जो नाम है नहीं ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है उर्दू में, और नहीं, अरबी में दूसरी हजरत अली का बात नाम ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि आपने आपको बचाने के लिए ऑडियो जो सुना रहे हैं वो मिर्जा मसरूर अहमद साहब की सुना रहे हैं। हाँ जी, वो उनकी ऑडियो सुना रहे हैं, और उस ऑडियो में एक और भी इन्होंने एडिट की हुई है जो नहीं है, तलत हवान के तलत मलक हैं आपके, हाँ जी, वो कुछ गुस्सा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जाहिलू के बच्चे। अब ये नहीं पता वो किसको कह रहे हैं। ਉਠ ਮੁਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਆ ਅਮਰ ਵਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ, ਕਿਹੜੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ 1.5 ਘੰਟੇ ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਗਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਨੇ ਉਹਨੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਚੜ ਕੇ। ਅਹਿਮਦ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਜਾਤਾ ਅਮਰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮਦ ਲਾਈ ਸੀ। ਅਹਿਮਦ ਜੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀ ਚ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਐਂਡ ਤੇ। अच्छा नहीं, ये यजीद को अलैहिस्सलाम कहते हैं कि नहीं कहते? अहले हदीस कहते हैं, रजी अल्लाह ताला अन्हो भी कहते हैं, और वो हाँ, तो फिर आप उसी को आमिर नजीर बचाने के लिए हजरत अली पे हमला कर रहा है। मिर्जाइयों पे तो तुम जो मर्जी हमले करो। मैं ना जरतश्त भाई, मैं जी, जी। पहले ना मैं सिर्फ नाम का अहमदी था, लेकिन जब से मैं टिकटॉक पे आया हूँ ना यार, इतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं कि वाकई अल्हम्दुलिल्लाह हम उस जगह पे खड़े हुए हैं कि जो बात है हम उसको सरेआम कहते हैं। उसके लिए हमने सारी उम्र कुर्बानियां दी हैं, ठीक है। उस टाइम ये नहीं पता था कि हम इन बातों पे कुर्बानियां दे रहे हैं भाई, वाकई बिल्कुल सही कुर्बानियां दी हैं। कि बल्कि हमारे इस किस्म के कॉन्सेप्ट्स ही नहीं है कि हमें एक बंदा कहता है ऐसे ही भाई कि मुनाफकत की वजह से, क्योंकि एक सेक्ट को हमने दबाना है, उसकी वजह से तुम्हारे किसी अकाबर पे कोई बदतरीन भी गुस्ताखी करता है ना तो तुमने चुप करके बैठ जाना है। तुमने अपनी मुनाफकत दिखानी है, अपनी जुबान बंद रखनी है और अपने आप को ताला लगा लेना है और मुनाफकत को जाहिर करना है। हम वो अहमदी, हम लोग वो लोग हैं जो सरेआम जाके अपना अकीदा बताते हैं। हमारे अकीदे पे सवाल करने के लिए कोई दगड़ मगड़ सा भी है ना, जो दगड़ मगड़ सा जिसे कोई पूछता नहीं है, वो आके हमें कहता है भाई तुम ये, तुम्हारा ये अकीदा, इसके बारे में जवाब दो, इसका हवाला दो, उसका हवाला दो। हम हर चीज का देते हैं। इनसे किसी से पूछ लो कि भाई तुम्हारा अकीदा क्या है। अहमद रजा टिकटॉक से नीचे उतरेगा ना तो कहेगा अहमद रजा बरेलवी मेरे सर का ताज है, मेरी जान है, मैं उनके अलावा जा ही नहीं कुछ नहीं सकता। और जैसे टिकटॉक पे आएगा, मुबशर एक मिनट आई जी भाई, छोटी जी गल कर लेंदे, थल्ले एक बंदा बैठा है शुएब राजा तेरी ते 900 अगे समझदार है, तू आपे ही समझ गया होएगा। जज़ाकल्लाह। ना आजी भाई ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹਨੇ 900 ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਲਿਆ? समझ गया। और अल्हम्दुलिल्लाह ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਓ। ਸ਼ੁएਬ ਰਾਜਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਸ਼ੁएब ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਓ। ਸ਼ੁएब अच्छा ਰਾਜਾ एक ਸਾਹਿਬ मिनट कानू भाई, एक मिनट ठहर जो, उन्हें किथे आना है, ओदी जुरत है भाई इथे आ जाए, आके ट्रैक्टर करेगा। और नहीं, जुरत नहीं है ओदी। मैं गल कर रहे हैं, ਮੈਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਸ਼ੁएब ਰਾਜਾ कि हुण ਅਸੀਂ देखो, ਅਸੀਂ अहले तशरीफ ही नहीं, ਅਸੀਂ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ਨੂੰ अपना पहला इमाम भी नहीं मनते, लेकिन फिर भी ਅਸੀਂ इस फैक्ट ते खलोते हैं
کہ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਹਿਲੇ ਤਸ਼ੀਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਇਮਾਮ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਮਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਕਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਹੈ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਵਹਾਬੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਏ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਲੜਾ ਦੋ। ਗੱਲ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਏ। ਉਹ 313 ਬਹਿਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 313 ਬਹਿਰੀਨ ਉਸਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਦਿਓ ਜਵਾਬ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਦਣ ਵੀ ਬੌਕਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਬੌਕਦੇ ਨੇ। یہ کوئی توقع نہیں ہے۔ کدی کہندا ہے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں اس لیے کی تھیں کہ وہ عورت 365 دن دستیاب نہیں تھی، نبی کی گستاخی۔ کبھی کہتا ہے کہ جی قرآن جو کہتے ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ جب اس کو موقع ملتا ہے یہ نبی کے گھر پہ ہی بونکتا ہے۔ ان کا وطیرہ ہے۔ ادھر اپنے باپ کو یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، جس نے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا۔ نبی کے نواسوں کو شہید کرنے کے لیے یہ پاکستان تک پہنچ گئے۔ وہ لاہور میں وہ ان کا کیا مقبرہ ہے 3 عورتوں کا، تو ان کے پیچھے کون آیا تھا؟ وہ مسلمانوں نے کیا ہوا ہے نا، بیر سے تو کسی نے نہیں کیا۔ ہاں جی، بی بی پاک دامن، ہاں بی بی پاک دامن کا۔ تو انہوں نے جب بھی موقع ملا ہے نبی کے گھر پہ ہی بونکے ہیں، بیر نہیں بونکتے۔ بے فکر رہے ہیں آپ لوگ۔ زرتش بھائی میں گیا ہوا ہوں ادھر۔ ہاں جی میں نے دیکھا ہے، سارا گیا ہوں میں بھی۔ اس ابا جان کو بچانے کے لیے جی مرزائیوں کے اوپر الٹا دو، اور ہمیں کیا فرق پڑے گا؟ تمہارے جیسے 10 بندے اور بھی اگر ہمیں گالیاں دے لیں گے تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن تم اپنی حالت دیکھو کہ تم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے کے بعد پھر کہتے ہو کہ ہم نے کی بھی نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے جی اب دوسرا منحوس دیکھو، وہ کہتا ہے کہ میں یہ سنت ادا کرنے کے لیے پاکستان جاؤں گا۔ وہ کون سی سنت ہے ذرا اس سے بھی پوچھ لیں۔ میں کہہ رہا ٹرو مسلم بھائی سے نا اس پہ لے لیں۔ ٹرو مسلم بھائی میں نے جو باتیں کی ہیں آپ نے وہ سنی ہے، وہ مطلب کہ کیسا خوبصورت طریقہ ہے۔ آپ تو اس کیٹیگری میں نہیں آتے، آپ نے تو اپنے آپ پہ بہت بڑی باتیں کروائی، اس کے باوجود آپ جو بات سمجھتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، اس کو ایکسپریس کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہپوکریسی ہے اور منافقت ہے ہمارے مسلمانوں میں کہ صرف ایک مائنورٹی کو دبانے کے لیے ہم لوگ بڑی سے بڑی گستاخیاں برداشت کر جاتے ہیں اپنے کابرین کے لیے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے پلیز؟ دیکھیں یہ جو کرتے ہیں، اب ان کے ساتھ جو ڈیبیٹر بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے یہ گستاخی کی ہے احمد نذیر صاحب نے، تو وہ ان کو کہنے کے بجائے کہ جی آپ نے گستاخی کی ہے، آپ معافی مانگے، اپنے الفاظ واپس لیں، وہ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور احمد نذیر کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کو بچا رہے ہیں۔ یہ منافقت کی اعلیٰ ترین جو ہے مثال ہے۔ اور دوسروں کو یہ کہتے ہیں کہ جی ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے، وہ گستاخی کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، تو خود دیکھیں ریکارڈنگ موجود ہے۔ اتنی بڑی ہستی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں انہوں نے کیا کہا، ان کے اوپر جھوٹ باندھا کہ ان کی یہ سنت ہے اور ان کی شان میں گستاخی کی، تو اب ان کو معافی مانگنے کے بجائے دیکھیں اس کے اوپر ڈٹ گئے، اڑ گئے۔ نہیں معافی کس چیز کی ٹروت مسلم صاحب بھائی؟ چلیں اگر دوسرا بندہ نہیں، یہ بات غلط ہے۔ اگر دوسرا بندہ بھائی انہیں بات تو کر لینے دیں پلیز، انہیں بات میں تو نہ ٹوکیں یار۔ میں اسی پہ انہی کی اسی بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ دوسرے بندے سے اگر گستاخی ہو جائے تو اس کے لیے سزا ہے، اس کا سر تن سے کہتے ہیں جدا کرو، اور جب خود ان سے گستاخی ہو تو یہ گستاخی ماننے کے بجائے یا معافی مانگنے کے بجائے اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی اس کے جو ہے نا تعویلیں کرتے ہیں، اس کی تشریح ایسے کرتے ہیں کہ اپنی گستاخی کو جو ہے نا اس کو پوزیٹیو میننگ نکال کے نا اس کو مطلب کہتے ہیں ہم نے جو کہا ٹھیک کہا۔ تو یہ منافقت کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ ویسے دیکھیں یہ ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگاتے ہیں کہ جی وہ کافر ہیں، شیعہ کافر ہیں، وہابی ایسے ہیں، دیوبندی ایسے ہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب
जमात अहमदिया के बारे में कोई बात हो तो ये सारे एक हो जाते हैं। ये इसकी मुझे समझ नहीं आती कि ये सारी सबसे ज़्यादा नफरत जो है बहुत जमात अहमदिया से वो क्यों करते हैं। हकीकत में देखा जाए तो ये 3-4 जो मसलक है हमारे आपस में भी काफर होने तक एक दूसरे के फतवे लगे हुए हैं। एक दूसरे की मस्जिद में हम नमाज नहीं पढ़ते, हमारे एक इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। अगर एक मसलक के बंदे किसी दूसरे मसलक के इमाम के पीछे नमाज पढ़ ले तो वो कहते हैं कि इन सब का निकाह टूट गया है, आपने किसके पीछे नमाज पढ़ी है। ये इसकी वीडियो मौजूद है। लेकिन जब जमात अहमदिया की बात आती है, इनको दबाने की बात आती है, इनका नुकसान करना, इनके साथ नफरत करना, तो ये सारे एक हो जाते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों करते हैं। मैं कहता हूँ जमात अहमदिया भी देखें, वो भी नबी पाक के पैरोकार हैं, तो उनको एक मसलक के तौर पर उनको भी एक मसलक बना दें, मसलक के तौर पर करार दें उनको, जैसे बरेलवी, देवबंदी, शिया, वाबी। तो जमात अहमदिया को एक मसलक करार दे के उनको भी पाकिस्तान में अपनी जो इबादत करते हैं, तबलीग करते हैं, करने दें उनको। मेरा ये मौक़िफ़ है कि दीन में किसी के सब ऊपर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। यानी अगर कोई तबलीग का काम कर रहा है अपने रह के, अपने मसलक में रह के, तो उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। उसके ऊपर पाबंदी लगाना ऐसे है जैसे ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ है, आप उसके इंसानी हकूक़ को जो है एक गसब कर रहे हो। देखें, इंडिया जो है एक मुसलमान मुल्क नहीं है। वहाँ का कानून है कि कोई भी जमात, कोई भी ग्रोह, जितने भी मज़ाहब हैं, वो अपने अपने मज़हब में रहकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो मज़हब उनको इजाज़त देता है वो कर सकते हैं। इंडिया में ये इजाज़त है, तो पाकिस्तान में ऐसा क्यों है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। ट्रुथ मुस्लिम भाई, ये पिछले दिनों में सियाल जंग नाम की आईडी थी और उसने बनी इसराइल की आईडी पे जाके जो गुस्ताखी की थी वो आपने सुनी हुई है। फिर वो जबरू खान के नाम किया उसने किया, ये पिछले दिनों की बात है। वो आईडियाँ यहाँ पे फिर रही हैं। क्या इन्होंने श्रीलंकन जो बंदा था उस